जी हाँ, सीधे आप देख सकते हैं तस्वीरें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से। राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा स्पीकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी भी आपको नजर आ रहे हैं। और कुछ ही क्षण में लोक लेखा समिति शताब्दी समारोह का ये दूसरे दिन का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और संसद टीवी इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा करता रहेगा। लोक लेखा समिति शताब्दी समारोह के समापन सत्र में उपस्थित सभी माननीय विशिष्टजनों को सादर नमस्कार। इस ऐतिहासिक 2 दिवसीय समारोह के समापन सत्र में मैं सबसे पहले अनुरोध करती हूँ भारत की संसद की लोक लेखा समिति के माननीय अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी जी से कि वह स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। Distinguished delegates, good morning to all of you. I think that we all are fortunate enough because for the last 2 consecutive days, Fortune himself is smiling upon us, and as a result of which, we are all basking the dazzling sunshine in Delhi and really enjoying the pleasure of this capital. At this historic centenary celebrations of Public Accounts Committee is now drawing to a close. I would like to thank all those who have shared their perspective on different subjects we discussed in the last 2 days. It is gratifying to note that we have been able to achieve a consensus on a host of issues after such extensive discussions. I am extremely grateful to all the distinguished delegates and others attending the conference for your kind help and cooperation for the smooth and facile conduct of this conference. Your presence itself shows the significance of PAC in a democracy and our strong commitment to work towards strengthening it further. There is a saying in Sanskrit, Ano Bhadro Kradhu Yantu Bisata. Let the noble ideas comes from different directions. And India is such a country which always indulges the divergence of values. We always encourage the plurality of our culture. Debate, discussion, dissent, disagreement are all inherent in our civilization. Practically, our civilization is itself an unending celebration of human plurality. Just see, we have inherited 4 Vedas, 18 Upanishads, 6 schools of classical philosophy, 2 epics, and so on, which eloquently speaks the society we have inherited, which know how to accommodate this divergence of ideas and the dissension also. This is the beauty and niceties of our civilization. So that is why India is called a civilizational country, where always debate is inspired. See, the dialogue and debate in Mahabharata
everywhere we have been witnessing since the time immemorial that question, query, quest, doubts, all are to be ventilated in a free and unrestricted manner, which culminates into the enrichment of our civilization, our society, and our country itself. After the end of the Second World War, if you see that a world witnessed a wave of democratizations across the globe. World witnessed that wave of democratizations. But the salient feature is that barring a few countries, democracy has not been flourished, thrived in a manner it was desired. But the exceptional feature of our country is that we have been continuing the essence of democracy for our last 7 decades. By dint of our democratic resilience, we have been able to carve out a niche in the Committee of Nations. There we have been always recognized as a democratic country. With all its deficiencies, failures, maybe. But in the Nehru's words, the mention of noble institution, that is our parliamentary democracy, still is being sustained because of these civilizational cultures we have inherited into our system. Our former Prime Minister Jawaharlal Nehru said that when society becomes more complex, the official apparatus grows tremendously, bureaucracy grows. Bureaucracy means a trained person doing a job, but as trained person fit into a huge machine, they become cogs and lose initiative and purpose. Any system of government which tends to become passive and static is bad. The parliamentary system of government, with all its failure, has the virtue that it can fit with the changing pattern of life. Yes, we are able to adopt the changing pattern of life. There lies the crux of our success. And PSC is such a glorious institution which acts as a formidable fulcrum of the noble Indian democratic system, which try to ensure, which exhaust all its resources in order to put in place checks and balances of our political system. Today, when this memorable conference concludes on behalf of all the delegates, and on my own behalf, I take this opportunity to express my profound gratitude to the respected President of India, Sri Ramnath Kovind ji, who graciously acceded to our request to inaugurate the conference. The tone for meaningful debates at the conference was set by his stimulating inaugural address. We are grateful to the Honorable Speaker Lok Sabha, Sri Om Birla ji, for taking keen interest in organizing this program and providing us with his invaluable guidance and kind support. We have with us our Honorable Harivansh Narayan Singh ji, who also once upon a time, remained in the PSC, I think led by Chandrasekhar ji.
if I can memorize correctly, the setting up of first Public Accounts Committee in 1921 was a landmark in the chronicles of our parliamentary system, as it was the first pioneering step towards establishing financial control by the legislature over the executive. I would like to pay my tributes to those who contributed to the growth of PSC since its founding year, in particular those who steered the society in the initial stages. I am pleased to say that PSC from its very beginning became a major component in asserting legislative influence upon government. The committee achieved another milestone when it celebrated the Golden Jubilee in December 1971 on its successful completion of 50 years of service to the nation. The Golden Jubilee celebration of the Public Accounts Committee of Parliament was inaugurated by the then President of India, Sri V.V. Giri. I pay my humble tribute to all the parliamentarians who in the formative years of the PSC, with their wisdom and great caliber, worked tirelessly towards strengthening of this constitution. The caravan of all the democratic institutions of our country has been going on, and in the course of their journey, they are extracting the views, the divergence of millions of people of our country and the world at large. Because we never express our parsimonious attitude to accept any divergence of views from anywhere across the globe. During the last 2-day celebration, we discussed themes on 4 important sessions, namely functioning of PSC in present times, challenges and the way forward, realigning PSC's approach, collecting information from non-governmental sources, and assessing outcomes of programs, schemes, projects, implementation of recommendation of PSC, adherence to timelines and mechanism for strict compliance, PSC as a development partner focusing on strengthening of system and promoting good governance, impact of PSC, ensuring citizens' right to due process and value for taxpayers' money. The theme of all the sessions are of immense topical relevance to all democracies, more so for a parliamentary democracy like ours, which functions through an institutionalized system of checks and balances to secure good governance practices. See, we have not reached to such a zenith of democracy without any suffering or without any struggle or fight in our journey. I would like to remind you that the Nobel laureate Rabindranath Tagore once expressed his grief, anguish, pain to his associates after observing the terror and horror that occurred during the course of World War II. One of his associates replied that, Mr. Tagore, the courses of civilization have not been determined by the brutal forces. The courses of civilization have been determined by the forces of humanity. So, the course of history will not be determined by the red shirt or black shirt. It has become true. The reason is that neither the brown shirt of Hitler nor the black shirt of Mussolini
are going to determine the courses of civilization in the contemporary period. The course of civilization is going to be determined by a person who has no shirt. He is Mahatma Gandhi. He lives in India, was quoted by one associate of Rabindranath Tagore. As we all know, executive accountability to the legislature is one of the cornerstones on which the edifice of a parliamentary democracy is erected. It is also one of the crucial components of good governance, along with securing rule of law, ensuring transparency and combating lack of probity. Public Accounts Committee keeps a constant vigil over the government spending and performance. Thus, parliamentary control over public expenditure is not limited only to voting of monies required for carrying on the administration of the country, but it also ensures that the expenditure is incurred in a prudent manner and that the objectives underlying the policies approved by the Parliament are achieved. Meanwhile, as far as overall approach is concerned, I believe PSC is desired to find innovative responses to newer and emerging challenges in the present scenario. The report of PSC are immense value. Citizens can use this report to question their representatives and hold the public servant to account. We have got, during the exchange of views, a plethora of ideas. Our honorable participants, they have evacuated the treasury of their experiences in the course of the deliberation. We have decided that we will give due importance to those views, opinions articulated by those distinguished delegates during the course of deliberation, and in consultation with our honorable speaker, we are going to devise a way and means to make the PSC mechanism more strident, more responsive, and more accountable. And certainly, you are all will be taken into consideration. It will be done not in isolation, but in unison of all the PSC chairmen across the nation. I now conclude on a note of satisfaction and with the hope that the Public Accounts Committee will work with more intent and sincerely in the coming years in delivering democracy and setting high benchmarks for democratic legislatures so as to ensure that democracy delivers as also remains relevant to the people at all times. Our thanks are also due to the Secretary General of Lok Sabha, Sri Utpal Kumar Singh, for his profuse efforts in organizing this event. I would also like to express my deep appreciation of the quiet and dedicated work put in behind the scene by the officer and staff of the Lok Sabha Secretariat and PSC Secretariat, who provide invaluable secretarial assistance to make this function a grand success. I also take this opportunity to heartily thank the media for taking an active interest and giving wide coverage for the varied activities of the conference. I would also like to express my deep appreciation for the exhibition organized by Parliament Museum and Archives on the 100 years historic journey of PSC. The exhibition is the attraction of centenary function. Such exhibitions have their own importance, for they go a long way in creating awareness of the efficacy of parliamentary institutions and structure in strengthening democracy. The success of this conference shows the dedication of our representative towards good governance and development. The active participation of delegates in the deliberation on different themes have made the discussions fruitful. It also reflects the sensitivity of our legislators towards public welfare. All the sessions are very interactive and interesting. Friends, more than anything else, our gratitude is to you all whose cooperation at every stage and enthusiastic participation throughout the conference is what is
what has made all our efforts a highly rewarding experience for us as the host. With this word, I heartily congratulate all of you on the centenary PSC and for your commitment to continue the good work in the same spirit which motivated the establishment for a century ago. Gandhiji once exhorted to us, a small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. Certainly, we will do something magnificent, something significant, something needful for the country which we are belonging, our great country, India. Jai Hind. Sabko namaskar. धन्यवाद माननीय लोक लेखा समिति अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी से कि वो सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को संबोधित करें। माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी, विभिन्न विधानसभाओं के आए सम्मानित अध्यक्षगण, विधानसभाओं के पीएससी के अध्यक्षगण, उपस्थित अनेक माननीय वरिष्ठ सांसद, पूर्व सांसद, पीएससी के अध्यक्ष, और मैं कहूँ बहुत सारे चेहरे ऐसे लोगों का मैं देख रहा हूँ जो सांसद भी हैं, जो पहले पीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनके लेखन, वचन और काम से बहुत कुछ व्यक्तिगत सीखा हूँ, सीखता भी हूँ। यहाँ उपस्थित इस अवसर पर राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरलगण, भाइयों और बहनों, मैं आभारी हूँ माननीय स्पीकर साहब का, जिन्होंने इस मौके पर मुझे आपके बीच होने का अवसर दिया। पिछले 2 दिनों में आपके डेलिब्रेशंस में कितनी महत्वपूर्ण चीजें हुई, क्या चर्चा हुआ, वो हमने अभी माननीय अधीर रंजन जी से सुना। खासतौर से मेरी दृष्टि में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और राज्य की विधानसभाओं की ऐसी समितियां, इनकी भूमिका ऐतिहासिक है। अगर साथ जोड़ दें पब्लिक एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो कुल मिलाकर परमानेंट विजिलेंस सरकारी खर्चों पर सरकार को अकाउंटेबल बनाने का काम आप सब करते हैं। इस आयोजन के संदर्भ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पढ़ रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, यह लोक लेखा समिति के 1 सदी की यात्रा है। साथ ही भारत को जिन्होंने आधुनिक स्वरूप दिया, उस महात्मा गांधी का कुछ ही 1 आध वर्ष पहले हमने 150वीं वर्षगांठ मनाई, और आजादी की 75वीं वर्षगांठ, अमृत वर्ष हम यह मना रहे हैं। और दुनिया में यह दौर मेरी सामान्य समझ में आर्थिक विकास का दौर है। अगर आर्थिक बेहतरी हम कर पाए तो देश की नीति एक नए रूप में सामने आएगी। आज हमारे लिए शायद यह दुनिया की जो स्थिति है, उसमें एक राजनीतिक आर्थिक ताकत बनना एक विकल्पहीन मुद्दा है, और वह बनाने की क्षमता, उसकी देखरेख, वह खर्च जो सरकारी होता है, वह बहुत सोच समझकर, सावधानी से, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, औचित्यपूर्ण हो, उसके पीछे तार्किकता हो। यह काम तो आप सभी करते हैं। महज आपके जिम्मे यह देख रेख कि नुकसान हो, लीकेजेज हो, यही नहीं है, बल्कि जो चीजें तय हुई हैं उनका परिणाम देश को आर्थिक लाभ के रूप में, आर्थिक विकास के रूप में मिल रहा है कि नहीं। आप देखें किस रूप में आपका दायित्व बढ़ा है। कल आपने सुना 1921 में जब पीएससी का गठन हुआ तो गवर्नमेंट रेवेन्यू महज 200 करोड़ का था। 1947-48 फर्स्ट बजटरी एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाज 197 करोड़। आज बजटरी एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़। और मैं राज्यों के फिगर देख रहा था, 21-22 में कंबाइंड बजट ऑफ ऑल स्टेट्स, जो सूचना मुझे उपलब्ध मिली सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से, लगभग 43 लाख करोड़।
आज स्टेट्स सेंटर से भी अधिक खर्च कर रहे हैं। तो रोल ऑफ स्टेट पीएसएज और यहां की पीएसएज कितनी बड़ी डिफाइनिंग रोल है इस हिस्ट्री में कि भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में आपकी भूमिका अभूतपूर्व है। और यह महज मैं मानता हूं कि राजकोष, खजाना या सार्वजनिक धन का खर्च कैसे हो, यह इतिहास की धारा तय करती है चीज। यह देश की भविष्य और नियति तय करेगी। यह ताकत आपके पास है, आपकी निगरानी में यह चीजें हो रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से पीएससी के कामों का क्या असर रहा है देश में। 1958 का एक प्रसंग आप याद करें। एक मुद्दा उठा, किस तरह से तत्कालीन एक बहुत ही प्रभावी आदमी पर उसका असर पड़ा। 64-65 ऑनवर्ड्स श्री आर मोरारका जी चेयरमैन होते थे पीएससी का। मैंने मेमोइर्स पढ़ा है चंद्रशेखर जी का। क्या पीएससी की ताकत होती थी, क्या प्रभावी रूप में वो भूमिका होती थी। हाल के वर्षों में पीएससी की रिपोर्ट्स ने किस रूप में देश में एक राजनीतिक चेतना फैलाई, उसका क्या असर हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर मानव नियति तय करने में आर्थिक मुद्दों का बड़ा कारगर इतिहास और उसकी भूमिका रही है। जो विचारों का दौर आया, जिसमें मानते हैं कि बहुत प्रभावी विचार के रूप में वामपंथ आया, उसके सबसे बड़े भाष्यकार ने कहा कि आर्थिक ताकतें ही इतिहास की धारा तय करती हैं। पर महात्मा गांधी उससे आगे गए। 1921 में उन्होंने सार्वजनिक खर्चे का एक पैमाना तय किया और फॉर्मूला दिया। 1921 में आप याद करें, कहा, मैं कोट करता हूं, यदि हम जनता से मिली पाई का ठीक से हिसाब न रखें और उसे समझदारी से खर्च न करें तो उचित यही होगा कि हमें सार्वजनिक जीवन से निष्कासित कर दिया जाए। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने खर्च कैसे करें, सरकारें कैसे खर्च करें और सरकारें कैसे रहें, इस पर बाकायदे उन्होंने लिखा और कहा। एक पंक्ति मैं सिर्फ उसमें से कोट करना चाहता हूं, सार्वजनिक सेवा भी सीजर की पत्नी की तरह संदेश से परे होनी चाहिए। यह हरिजन में 1946 में उन्होंने लिखा। महात्मा गांधी ने कहा कि साधन और साध्य के बीच, वो शायद इतिहास में अनोखे नायक हुए जिन्होंने कहा साधन बेहतर होंगे तभी साध्य आप बेहतर पा सकते हैं। तो उस बेहतर साधन हो, ये सुनिश्चित करने का काम, आर्थिक खर्चे अपने उद्देश्य के तहत हो, ये करने का काम तो आप सबका है, पीएससी का। अगर कोई चीजें कहीं डेविएट कर रही हैं तो वो निगरानी में लाने, सचेत करने, सरकार को बताने, सुधार कराने का दायित्व आपका है। और ये पुरानी परंपरा रही है। आपने कल कौटिल्य की बात भी सुनी। 2000 वर्ष पूर्व कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस तरह चाणक्य ने कहा। और सिर्फ ये कौटिल्य तक नहीं, तिरुवल्लुर, तिरुकुरुल से लेकर इथिकल मैनेजमेंट के बारे में भारतीय परंपरा में शुक्रनीति से लेकर महाभारत में भीष्म जब स्टेट क्राफ्ट के बारे में कहते हैं, सब जगह प्रसंग पाएंगे। और गांधी ने सुनिश्चित किया, सूक्त वाक्य में कहा कि अंतिम आदमी तक इसका लाभ पहुंचे, यह होना चाहिए। इसीलिए शायद कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन ने पीएससी को कॉन्सेंस कीपर ऑफ द नेशन इन फाइनेंशियल मैटर्स कहा था। कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैग के ऑडिट दिवस पर कहा कि सीएजी सरकार की परफॉर्मेंस को असेस कर सरकार को एक आउटसाइडर व्यू पॉइंट देता है। उन्होंने यह भी कहा, whatever CAG suggests, government makes systematic improvements and we see it as support to the government. विगत कुछ वर्षों में आंकड़ों को देखें तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 75% से अधिक पीएससी की रिकमेंडेशंस को माना एवं उस पर काम किया। State PSCs also should press upon their governments to respond to implementation status of PSCs recommendation. इस तरह की आवश्यकता पर पहले के कॉन्फ्रेंसेज में भी चर्चा हुई है। मैं कहना चाहूंगा, खासतौर से स्टेट्स के बारे में कभी कभी खबरें मिलती हैं, और मैं खबरों के माध्यम से उसी सूचना स्रोत से कह रहा हूं कि आज आपने देखा कि स्टेट्स द्वारा खर्चे का वॉल्यूम कितना बढ़ा है कि पीएससी की रिपोर्ट सब कम आती हैं। अगर जहां ऐसा है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सिर्फ रिचुअल ना रहे, क्योंकि बताया मैं, इकोनॉमिक खर्चे जिस तरह से सरकार द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उससे देश की नीति तय होती है। उस पर निगरानी रखने, देखने, उसको डेविएट न होने देने का दायित्व इस कमेटी का है। कई जगहों पर लोग महसूस करते हैं स्टेट्स में कि स्पेशल ऑडिट उन डिपार्टमेंट्स का होना चाहिए, 100% डिपार्टमेंट्स का ऑडिट होना चाहिए। कई स्टेट्स में ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि टोटल बैंक्स के पास जो खर्चे के उनके रिसिट्स और बाकी चीजें जाती हैं, डिटेल्स,
बिल्स वगैरह वो, और सरकार के पास जो खर्चे हुए हैं उनमें रिकंसिलिएशन फिगर नहीं मिलते। ये सारी चीजें, ये संभावना इसलिए थी क्योंकि पहले फिजिकल काम होता था, पहले संभव है कि ये सब लैकुना रहता हो, पर आज टेक्नोलॉजी ने संभव बनाया है कि ये सारी चीजें बदली जा सकती हैं। पीएससी को रिसोर्सेज उपलब्ध कराना चाहिए जिससे पीएससी इन कामों को इफेक्टिवली मॉनिटर कर सके। टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ा आपने देखा। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जिसके बारे में कल आपने चर्चा सुनी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन में डीबीटी स्कीम 2020 का क्या इंपैक्ट था, उन्होंने बताया कि 9 लाख करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज थ्रू डीबीटी ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स, और उसमें लीकेज कितना बचा, 1.7 लाख करोड़। यानी टेक्नोलॉजी, बैंक, आधार, मोबाइल ने ये सारी परिवर्तन किए। मैं आग्रह करूंगा क्योंकि हमारे बड़े इफेक्टिव हैं अधीर रंजन जी और आप सब, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे इन चीजों को और हम बेहतर बना सकते हैं जो पहले संभव नहीं था हाथ के माध्यम से, या जब हम पुराने तौर तरीके से काम करते थे तो अब संभव है क्योंकि आज टाइम स्पीड एक्यूरेसी टेक्नोलॉजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में टेक्नोलॉजी पहुंच के वो संभव बनाया। अब जैसे मैं एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि हम इनोवेट करें कि क्या ये चीज संभव है। क्या मैं देख रहा था कि कैग ने 2004-09 में ऑब्जर्वेशन दिया मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस डील लैंड के बारे में। मैं डिफेंस कमेटी में था पहले। 2013 में पीएससी ने रिपोर्ट उस पर दी, 2018 में एक्शन रिपोर्ट आया। आप समझें कि 2004-09 में जब कैग की रिपोर्ट आई उसके पहले चीजें हो रही होंगी। यानी कहा जाता है पीएससी को कि पोस्टमार्टम हम करते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने संभव बनाया है। कल आपने कोट सुना सिडनी वेब का, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुनियाद डाली। वो बड़े जाने माने ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थिंकर रहे। उन्होंने कहा कि यह पोस्टमार्टम परीक्षा जो होती है पब्लिक ऑडिट से, ये पेशेंट्स को अलाइव रखने के लिए कुछ करता या नहीं करता, यह अलग एक इश्यू है, पर पोस्टमार्टम की यह परीक्षा मर्डर को रोकता है। पर आज ये संभावना बनी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि जहां मर्डर की भी संभावना बनी हो शायद रोका जा सकता है, पर इसके लिए रिसोर्सेज, संसाधन इस कमेटी को मिलना चाहिए। मुझे लगता है इस नए ढंग से इस पर इनोवेट किया जाना चाहिए, सोचना चाहिए। मुझे यह बताना चाहिए कि पीएससी के काम का दायरा बहुत वाइड है। करीब 40 कैग रिपोर्ट्स साल में आती हैं। इन सभी को एग्जामिन करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए लॉन्ग पेंडिंग ऑडिट पैराज की आज समस्या है। स्टेट्स में भी है और संभव है कि केंद्र में भी हो। कई सारे टैक्स और फाइनेंशियल डिसीजंस 2-3 दशक पुराने हैं जिनका आज के समय में रेलिवेंस नहीं रह जाता। इनमें से कुछ विषयों पर तो सरकार द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। पीएससी को और अधिक बैठकें या उपसमितियां बनाकर आम सहमति से विषयों पर डिसीजन कर क्लोज करना चाहिए, चाहे स्टेट्स हो या चाहे सेंटर हो। पर इसके लिए पीएससी को रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, उनको सारे संसाधन चाहिए। और ये काम की दुनिया में आज आर्थिक सवाल कितनी बड़ी नियति इंसान की, समाज की, देश की तय कर रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह पब्लिक अवेयरनेस का दौर है। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक लाइफ की बुनियादी जरूरत है और टेक्नोलॉजिकल एरा है। इसलिए हमारी ऑडिट प्रणाली में क्या आधुनिकता लाई जाए, कैसे उसको इस टेक्नोलॉजी से जोड़कर और रेलिवेंस बनाया जाए, इस पर भी नए ढंग से इनोवेट करना चाहिए। अगर हमारे ऑडिट में कोई फॉल्ट है, जो बाद में चीजें सामने आती हैं, वो हम इंट्रोस्पेक्ट करके उस पर अलग से विचार करके सोचें। अगर उसको और साइंटिफिक और बेहतर करने के अवसर अगर आज उपलब्ध है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उस सिस्टम को और मजबूत और बेहतर बनाना चाहिए। मैं एक और अपने अनुभव के तौर पे, सुझाव के तौर पे यह कहना चाहूंगा कि समिति चूंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पहलुओं को एग्जामिन करती है, जिसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होती है। इन पहलुओं की जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा समय समय पर सभी सदस्यों को देनी चाहिए और वह प्रभावी तरीके से कमेटी के काम में, ताकि सदस्य भाग ले सकें। मेरा अनुभव रहा है एक पत्रकार के तौर पे, अनेक जगहों पर 40-40, 50-50 वर्ष पहले सेंट्रल इन्वेस्टमेंट हुए, पर उसका रिटर्न समाज को नहीं मिल रहा है। डेड एसेट्स के रूप में चीजें पड़ी हुई हैं। कॉस्ट एस्केलेशन उसका अलग होता है। क्या इन चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रिपोर्ट्स के आधार पर कोई पॉलिसी डिसीजन बनाने की सुझाव या राय कमिटियों के द्वारा आए,
तो मुझे लगता है इस पर हमें गौर करना चाहिए। संसद की अन्य स्थायी समितियों को भी ऑडिट पैराज को एग्जामिन करने की कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर वेंकटचलैया कमीशन ने भी जोर दिया है। मैंने पहले भी समय समय पर कानून न बनने के सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में चर्चा की है। पुराने कानूनों को रिपील करने या उनमें जरूरी अमेंडमेंट के लिए उन्हें लगातार रिव्यू करते रहने की आवश्यकता है। इस प्रोसेस में पीएससी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के तौर पर इस साल फरवरी में पीएससी की एक सब कमेटी ने फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को एग्जामिन किया, जिसमें कई सारी कमियां पाई गई। इससे सरकार को भी कानूनों में आवश्यक संशोधन करने में सहायता मिलती है। हमारा मानना है कि विधानमंडलों के पीएससी के विधानसभाओं के पीएससी के अध्यक्षों को भी राज्य के कानूनों में भी इस प्रकार के रिव्यू करने का प्रयास करना चाहिए। पीएससी द्वारा अपनी रिपोर्ट्स को और सरल बनाने व सेल्फ कंटेंटेड प्रेस सामग्री उपलब्ध कराने की जरूरत है, ताकि इन रिपोर्ट्स पर मीडिया द्वारा कम समय में प्रमुखता से कवरेज हो और इकोनॉमिक इश्यूज पर पब्लिक एजुकेशन हो सके। इसके लिए सहज और सरल शब्दों में देश के लोकल लैंग्वेजेज में इन चीजों को बताया जाने की जरूरत है। हम सबकी मिलकर यह जिम्मेदारी बनती है कि हम मौजूदा जो चैलेंजेज हैं उनका सामना करें और फ्यूचर में जो चैलेंजेज हैं उसके लिए देश को तैयार करें। हमें विश्वास है कि सेंट्रल और स्टेट की पीएससीज की जो बैठक हुई वह भारत के आज़ादी के अमृत वर्ष, वह पीएससी की शताब्दी शतक यात्रा पर वह आर्थिक रूप से भारत को बहुत मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कारगर होगी। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं माननीय स्पीकर लोकसभा को, पीएससी अध्यक्ष को, आप सबको इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने की बधाई देता हूं। कॉन्फ्रेंस के भविष्य के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी। अब मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी से आग्रह करती हूं कि वो भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शताब्दी स्मारिका का विमोचन करें। अब मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगी कि वो सभा को संबोधित करें। लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह के समापन में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरवंश जी, संसदीय लोक लेखा समिति के चेयरमैन श्री अधीर रंजन जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारीगण, माननीय सांसदगण, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनगण, सदस्यगण, सभी राज्यों के आए अधिकारी, कर्मचारी भाई और बहनों, संसद की लोक लेखा समिति का शताब्दी समारोह का समापन आज हो रहा है। 2 दिन तक समिति के कार्यक्रम पर व्यापक चर्चा की, गहन विचार मंथन किया और अपने अमूल्य अनुभवों को साझा किया, ताकि हम इन संसदीय समिति के माध्यम से देश की जनता के प्रति इन समितियों को जवाबदेह बना सकें। साथियों, वर्तमान कालखंड एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा है। आज़ादी के हमारे संसदीय लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा हम पूरी करने जा रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमने समाज के व्यापक कल्याण के लिए
इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाया है। संसद की समितियां हो, राज्य की समितियां हो, उन समितियों के माध्यम से जनता में पारदर्शिता आए, जनता का कल्याण हो सके, सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सके। इसके लिए इस यात्रा में हमने बहुत काम किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियां शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में 4 सत्रों में व्यापक चर्चा हुई है, संवाद हुआ है और भविष्य में इन समितियों पर आने वाली चुनौतियों पर व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्णय और फैसले भी हुए हैं। लोक लेखा समिति संसद और विधानमंडल की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। ये समिति केवल इस देश में नहीं, विश्व के अधिकतम लोकतांत्रिक देशों के अंदर लोक लेखा समिति वहां की संसदीय प्रणाली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। ये समिति जहां देश और राज्य के वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो, वित्त शासन में पारदर्शिता रहे, जनता के धन का सदुपयोग हो और उसका नियोजन ठीक हो, इसको देखने की जिम्मेदारी भी समिति की है। समिति इस बात को भी देखती है कि जो जनता का धन है, जो समाज कल्याण की योजनाओं में लगाया गया है, उन योजनाओं के माध्यम से समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये काम भी इन समितियों के माध्यम से देखा जाता है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब राज्यों का और देश का बजट 75 वर्ष की यात्रा में बहुत बड़ा है, तो इन संसदीय समितियों की जिम्मेदारी भी बड़ी है, प्रासंगिकता की बड़ी है, इनका काम भी बड़ा है और इसीलिए इन समिति के कार्यों का ठीक से एग्जीक्यूशन हो, जो योजनाएं के लिए धन आवंटित किया गया है, उस आवंटित धन का हम ठीक से निगरानी कर सकें ताकि विकास में गया हुआ धन का ठीक से उपयोग हो सके। ये समिति की जिम्मेदारी है। साथियों, इस 75 वर्ष की यात्रा में देश में व्यापक बदलाव हुआ है। राज्य और देश ने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए काम किया है। और आज यही कारण है कि जहां एक धन का हिस्सा विकास की योजनाओं में लगता है, उतना ही धन का विकास के साथ साथ लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी लाया जाता है। लेकिन इस समिति की और जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हम समय समय पर किस योजनाओं के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया, इसके लिए भी इस समिति को समय समय पर प्रत्यक्ष रूप से जो स्टेक होल्डर हैं, जो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनसे प्रत्यक्ष संपर्क बनाकर फील्ड में जाकर भी इन समितियों को व्यापक गहन विचार विमर्श और जांच करने की आवश्यकता है, ताकि हम उन योजनाओं के अंदर दिए गए धन का सही नियोजन हो
और उसका अपव्यय न हो, इसका काम भी देखने का इस समितियों का है। साथियों, देश के अंदर हो चाहे राज्य विधानमंडलों के अंदर हो, जब से संसदीय समितियां बनी हैं, मैं कह सकता हूं ये मिनी संसद के रूप में काम करी। इन संसदीय समितियों में चर्चा, जो विमर्श होता है, मंथन होता है, वो राजनीति से ऊपर उठकर होता है। सभी दल के लोग रहते हैं और सभी दलों के लोगों का ये प्रयास होता है कि इन संसदीय समितियों के माध्यम से हम किस तरीके से हमारा राष्ट्र के प्रति जो दायित्व निभा सकते हैं, किस तरीके से समाज के अंदर व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए संसदीय समितियां व्यापक रूप से काम कर रही है। इन संसदीय समितियों की जो सिफारिशें होती है, उन सिफारिशों को भी सरकार मानती है, क्योंकि संसदीय समितियां डायरेक्ट सीधा संपर्क करती है। चाहे विधेयक बनाने में हो, विधेयक बनाने के लिए जब कानून बनता है, उसके लिए भी कानून के पढ़ने वाले प्रभाव के पढ़ने वाले लोगों से चर्चा करती है, संवाद करती है, ताकि कानून सही बने। इसके लिए भी संसद हो या राज्य की स्टैंडिंग कमेटियों का बहुत बड़ा रोल आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है। मेरा आग्रह है कि इस 2 दिन के मंथन में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो चर्चा की, उसके लिए एक समिति बने। संसदीय कमेटी के चेयरमैन हो, राज्य के कमेटी के चेयरमैन हो, और जिन विषयों पर चर्चा मंथन हुई है, एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर हम राज्यों के अंदर, केंद्र के अंदर वित्तीय अनुशासन को पालना कर सकें, वित्तीय अनियमितताओं को रोक सकें, जनता के धन का ठीक से उपयोग कर सकें और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए लगाए गए धन का व्यापक अध्ययन कर सकें। इसके लिए एक समिति को व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। और ये समिति जो व्यापक कार्य योजना बनाएगी, हम पीठासीन अधिकारी उस पर चर्चा करेंगे, राज्य की, केंद्र की सरकारों से चर्चा करेंगे और एक ऐसी नियमावली तय करेंगे जिससे पूरे देश के अंदर एक नियमावली तय हो सके। पिछले दिनों पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में कहा था कि पूरे राज्य और देश के विधानमंडलों की एक व्यापक रूप से एक नियमावली हो, एक पोर्टल पर उनके सारी डिबेट, चर्चा, संवाद एक पोर्टल पर हो। उससे आगे बढ़कर हमने संसदीय समिति की रिपोर्टें भी एक पोर्टल पर लाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम देश में एक पोर्टल पर जितनी भी हमारी विधानमंडल और केंद्र विधानमंडल की संस्थाएं हैं, उसको देश का व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर देख सकेगा। मैं इस मौके पर यहां पर जिन लोग प्रतिनिधियों ने इसमें सहभागिता दिया है, उनको धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सकारात्मक संदेश हमें दिया है। हम उन सबके सकारात्मक संदेश और मार्गदर्शन से देश की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। इन संसदीय समितियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे, पारदर्शिता बनाएंगे और आने वाले समय के अंदर ये देश और सशक्त और मजबूत हो। और आज जो हम योजना बना रहे हैं, आने वाले 25 साल के अंदर भारत के लोकतंत्र की दिशा क्या हो, इन संसदीय समितियों की क्या दिशा हो, ताकि देश के अंदर
एक व्यापक रूप से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा और विश्वास को पूरा कर सकें। आप सभी ने जिस सक्रियता से भाग लिया, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब लोग, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर राष्ट्र के प्रति, अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे आशा है हम सबके सामूहिक प्रयासों से इस राष्ट्र को सर्वोपरि बना पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और आने वाले समय के अंदर भारत का लोकतंत्र दुनिया के सभी लोकतंत्रों को एक मार्गदर्शन की भूमिका निभा पाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समापन संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। अब मैं सभी माननीय अतिथियों से मध्याह्न भोजन के लिए कोर्टयार्ड 9 की ओर Yeah.